Hello, Kunal. Welcome back, students, for the Organic Chemistry Lecture 3 session. What we have been trying, students, about the organic chemistry is very clear, the basic of organic chemistry. And we have been telling you in the last lecture, students, that the organic chemistry reaction involves the attacking reagent on the substrate. What we told you that the reactions which take place in the organic chemistry, students, what we were telling you about, if the reactions in the organic reactions means what? That there will be a substrate, students, and there will be a attacking reagent. So this is going to attack the substrate, and there will be some intermediate, and you will get some products, students. Right or wrong? This is how it is going to happen. And why should attacking reagent attack a substrate? Therefore, we talked about polarity of the bond, students. What we told you about polarity of the bonds. And we told you that here is a scale which we said Pauling scale of electronegativity, students, on the basis of which we can find out the direction of the dipole moment. But we can find from here, which we discussed last time. It is a recap, it is a revision. We can find the direction of the dipole moment, students. And what of the two in the bond, we can find out which element is negatively charged, students, which is positively charged. For example, in the case of alkyl halide, student, if this is Cl, then what is going to happen? The electronegativity of Cl is more than carbon. This becomes negatively charged, this becomes positively charged. Therefore, here you see carbon is positive. Therefore, what type of reagent will attack the carbon, students? This is positive. So nucleophiles. What are nucleophiles? Which have got negative charge, students, or which have electron pair. So nucleophiles negatively charged or Lewis bases, they will attack this carbon. And they will displace this Cl. So that's why we talked of the in alkyl halides or haloalkanes. We will talk about nucleophilic substitution reaction, students. Main reaction will be nucleophilic substitution, which we will discuss SN1 or SN2. So here the polarity of the bond is important, students, that which will take the electrons with it, because you can get the formation of intermediate, students, carbocations or carboanions or free radicals. It depends. So that is why we talked of electronegativity, and we showed you which bonds are polar, students, and what is the direction of the dipole moment, students. Which of the two atoms will have positive charge, which will have negative charge, because this will decide the type of the reactions, the type of the attacking reagent, nucleophiles, electrophiles, or radicals which are going to attack. So we'll be discussing when we talk of organic chemistry all this. Here we are talking of another important concept, students. And today I'm talking about the formal charge. Formal charge means what, student? You see that when we write organic or any compound, we are saying there is a charge on the atoms which are present in the molecules. And formal charge is a charge assigned to an atom in a molecule, assuming that electrons in all chemical bonds are shared equally between atoms, regardless of relative electronegativity. When determining the best Lewis structures for a molecule, structure is chosen such that the formal charge on each atom is as close to zero as possible. What we are saying, for example, if this is my ozone, we know that you have been told in ozone, students, when we talked of ozone, we have shown the resonance structure of ozone, in 11th class.
that ozone is a resonance hybrid of two structures. And we said that if I represent ozone, students, this is one structure of ozone which I have represented. This is one structure of the ozone which I have represented, students. This has a double bond. There can be another one. Yes, but there are electrons. We know we have to count. This is 2, 2, 4, and how many are there? 4, 8, 2, 4, 6, and 2. This is 2, 2, 4, and 6. These are the electrons which are present on each oxygen. Lone pairs. Lone pairs. You got it? Lone pairs. You know about it? Each oxygen is how much? 2, 6. 6 electrons are there in the outermost shell of the oxygen. And when we write the Lewis electron dot structure, students, then we know that 8 electrons to be satisfied. So this you know in chemical bonding, we have been doing this. The formal charge on each atom can be calculated by this formula. This is a formula, students, to calculate the formal charge, where V is the valence, number of valence electron. What is V, student? Number of valence electrons in a neutral atom in its ground state. N is the number of non-bonding valence electrons, and B is the total number of electrons shared in the bonds with other atoms. Supposing I number these. Supposing this is, I am saying this is my oxygen number 1, oxygen 2, oxygen 3. Okay? I have 3 oxygens in the resonating structures of ozone. How many? 1, 2, 3. If I want to calculate the formal charge, what I want to calculate? Formal charge on oxygen 1. Supposing oxygen 1, I am saying. This is my oxygen 1. Got it? 1 oxygen. What is the valence of the oxygen? How many electrons are there in the valence of the oxygen? Valence of the oxygen, how many electrons are there? Oxygen, what is the oxygen, you know? When I write oxygen, 1s2, 2s2, 2p4, atomic number is 8. This is the valence. How many are there? 6. 6 electrons are there in the valence shell. Number of valence electron, how many in oxygen? 6. Right or wrong? Tell me. Tell me. How many valence electrons are there in oxygen? 6. Am I right or wrong? 6 electrons. Okay? There are 6 electrons in the valence shell of oxygen as is shown here. This is my valence shell. Valence electrons. Valence electron V, 4 plus 2, 4 plus 2, 6. Minus N, number of non-bonding valence electron. How many non-bonding valence electrons are there on this one oxygen? This is a double bond. How many valence non-bonding electrons, students? The number of non-bonding electrons. How many? 2. Here it is 2. Only 1. Number of valence electrons. Number of non-bonding valence electrons on this atom 2. Okay? There I can see 1 and 1, 2. And minus student, minus how many, whatever we are talking about, total number of electrons shared in bonds. How many it is sharing? 2, 4, 6. 2, 4, 6 divided by 2, 6 by 2. So what is the answer? What is the answer here? Tell me what number we are get. Minus 2, minus 3. 6 minus 5. How much? Plus 1. Therefore, charge on this oxygen is plus 1. This is a formal charge on this oxygen. How much? Plus 1. Formal charge, why it is important, we will tell you. Because the valency of the different elements in the organic compounds, some charge is there, some charge is there. This is plus 1. If I take oxygen 2, let me take now second oxygen, this one.
This one, second oxygen. This is my oxygen 1. This is my oxygen 2 students. This is my oxygen 3. Oxygen number 2. How many valence electron in oxygen? 6. We already know about that. And how many number of electrons? How many number of electrons here? 2, 4, 6. What is the number of N? Number of non-bonding electron, how much? 6 here. 6 here. Okay? 2, 4, 6. There are 6 electrons in the non-bonding electrons. Yes or no? Tell me. Sure? 6? Yes. Okay. I make sure that I am counting the right number. If I do some mistake, you will tell me. You can interact with me, no problem. 2, 4, 6. How many bonds it is forming? Only one. And one bond has how many electrons? 2. How many electrons are there in the one bond, students? 2 minus 2 by 2. What is the answer coming? This will get cancelled. Minus 1. So here I have shown my minus charge. You see, plus 1 and minus 1. Oxygen 2. This oxygen is plus, this oxygen is minus. And what is the formal charge on oxygen 3, students? For 3 oxygen, I can calculate, students. How many valence electron in oxygen? Always 6. No problem. How many bonding electrons here? Dekho, 2 and 2, 4 are there. Only 1, 2, 3, 4. 4. How many bonds it is forming, students? How many bonds it is forming? So there are, in this case, there is a double bond 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. So 6 minus 4. 6 minus 4. And how many electrons are there in the double bond? In the double bond, how many electrons will be there? 2 and 2, 4. Minus 4 by 2. What is the value? Tell me. How much will be this? 6 minus 6, 0. So there is no formal charge here. Interesting. Got my point, what I wanted to show. What we are saying, when I write O3, students, when I am writing O3, there is some formal charge on the oxygen atom. Always remember, if oxygen is a double bond, na, what I am trying to come out with the conclusion. What is the conclusion? Oxygen actually will form a double bond. If oxygen is forming a double bond, because 2 plus 4, 6. How many electrons it need? 2 to become 8. So if oxygen is forming a double bond, student, it will be neutral. But it will be neutral. But if oxygen is a single bond, and you can see if oxygen is a single bond, then what is the story? Then it becomes minus 1, minus 1. So if I have oxygen double bond, student, 2, 4, 6, and 8. But if I have oxygen single, then what is the story? There are 2 electrons here. And then it has to gain 1 pair of electron. It becomes negative. It becomes negative. So when oxygen will be forming a single bond, students, single bond only, that means it has gained a pair of electrons, then it is negatively charged. It is negatively charged. If it is a double bond, then it is neutral. It is neutral. Or in other words, if I show oxygen like this, how many bonds it is forming? 1 and 1, 2. Now there will be no formal charge. It is neutral. It is neutral. But only one single bond, then it is having negative charge on it. Students, understood the point? Am I right or wrong? I am calculating the formal charge, students. But I have tried to show how to calculate the formal charge. This is the formula. You have seen this formula in that chapter of chemical bonding. Yes or no? Tell me, 11th class. Yes, sir. In that we determine formal charge. Formal charge. And what method we applied for determination? This was the formula. Any element, valence electrons, minus number of lone pair electrons, minus number of bond pair electrons divided by 2. Number of bond pair electron divided by 2. You can note down this formula. Note down this formula which I am using
for calculating the formal charge which is present on the molecule. Students, note it down. Note it down. Important information. So when we can draw more than one possible Lewis structure, we can draw more than one possible Lewis structure. What we try to do, we try to find the formal charge on each atom. And the best structure is that in which the charge on each atom is as close to zero as possible. As close to zero as possible. After all, if there will be charges, the molecules will react. Molecules will react. What we are saying, molecules will react. And here we have shown you in organic chemistry, you will be using carbon, you will be using nitrogen bond with carbon, oxygen, halogens. They are very common elements in the organic compounds. Yes or no? Tell me. Organic compound will contain carbon and amines, nitrogen containing compound, amines, nitriles, isonitriles, nitro compound, they have nitrogen. Alcohols, aldehyde, ketones, they have oxygen. Alkyl halides have halogen. Yes or no? So we can see what type of atoms will be there. They will be neutral or they will have some charge. They will be neutral or they will have some charge. And you know, when charge will be there, then what type of reactivity molecules will have, what type of reactions they will undergo, that also we have to understand. So यहाँ पर I am showing you, if you have a carbon, how many valence electron carbon has? Tell me. 4? Yes or no? Carbon, how many valence electron? 4? 4. 4, sir. That means it needs 4 bonds to become 8 electrons. Okay? Yes or no? So if carbon has 4 bonds, as I have shown here, the charge is 0. This is the charge is 0 here. Charge will be 0 in that case on the carbon. On the carbon. If carbon has got 4 bonds. But if carbon has got 3 bonds, students. Carbon here has got 3 bonds, students. And has a lone pair of electron. If carbon has 3 bonds and a lone pair of electron, the charge will be negative. And what do you call this as in organic chemistry? Tell me. Carbon with negative charge is what type of intermediate we call this? If carbon is carrying a negative charge, student, in an organic compound, what that is an intermediate, what you call this as? Tell me. Do you know or forgotten? What is this? I remember, sir. Remember? Yes, what is sir. a carbanion? Carbanion. What is the definition of carbanion? Carbon is carrying a negative charge. Yes or no? Tell me. An ion of carbon Yes, means what? There will be negative charge? Yes or no? Yes, sir. When it will happen? If it has only 3 bonds and 1 lone pair of electrons. This carbon I have shown here with 3 bonds, students, and 1 lone pair of electrons. This will become negatively charged. And this is known as carbanion. Carbanion is an intermediate in organic reactions. Yes or no? Tell me. Yes, sir. That's why I am giving you formal charge definition. The formal charge here is negative, students. And it becomes a intermediate, reactive intermediate. This is known as carbanion. I am talking of basic and general organic chemistry now. Why I gave you all this definition? Because they will help us in studying the reactions of organic chemistry. But one more thing is there. If the lone pair is not there and carbon is having 3 bonds, that lone pair, that pair of electron is taken by electronegative elements. Then what will be the charge on this, student? Tell me. If I find the formal charge on this, what it will be now? How will you find the formal charge? You are saying the carbon valency is 4
ठीक है, the valency of the carbon is 4, valence electron 4, and what, how many lone pairs of electrons are here, students, tell me, are there any lone pair of electrons? No, 0. Minus bond pair electrons divided by 2, how many bond pairs? 2, 4, 6 by 2. What is the formal charge, tell me now, what is the formal charge here? Give me the answer, Kirnal. What is the formal charge here? 4 minus 0 minus 6 by 2. Sir, it's 1. Plus 1. Yes, plus 1. Okay. If it becomes plus, this is known as what? Carbon carrying a positive charge is known as what? Tell me. You studied this. Sir, carbocation. Very good answer given by you, carbocation. Now, in organic chemistry, students, you know that intermediates like carbocation will be formed. Yes or no? You studied carbocation. And also you studied the stability of the carbocation. 3 degree, 2 degree, 1 degree. Yes or no? Tell me. Got it? Yes, sir. And while I will discuss alkyl halides, this is going to be there. So we are discussing the general organic chemistry. So which is more stable, 3 degree, 2 degree or 1 degree? Carbocation. Tell me. Which carbocation degree, is sir. more stable, Kirnal? 3 degree, 2 degree? 3 degree, 3 degree, 3 degree. 3 degree. Okay, good answer. Got it. Now you know why I am doing all this. Because Yes, sir. organic reactions will involve the intermediates. And formal charge, how to calculate, I am given the formula. You note it down. Carbocation is having a positive charge. Those R groups, alkyl groups, which can donate the electrons, will make it more stable. And you told that 3 degree carbocation is more stable than 2 degrees, more stable than 1 degree. Yes? Hyperconjugation. We are going to discuss all this in general organic chemistry. So, what was the point of getting to this formal charge, students? That the intermediates which will take part in the organic reaction, they can have a charge, positive or negative, and then they will become reactive intermediates and will decide the course of the reaction, mechanism of the reaction. So if carbon having 4 bonds, then neutral. And but if carbon is 3 bonds now with a lone pair, negative, without a lone pair, positive. So carbon can form carbocation. This is a carbon ion, this is a carbocation. So these are the intermediates which can be there in organic reaction. Now I am coming to nitrogen. Tell me, what is the valency of nitrogen? How many bonds nitrogen is forming, students? Sir, 3. 3. Nitrogen is having 5 valence electrons. Yes or no? How many? 5. 5. So nitrogen has 5 valence electrons. It needs 3. When it forms 3 bonds, see, there are 3 bonds here, and there will be a lone pair on the nitrogen. Yes or no? How many 5 electrons are there in the nitrogen? 3 bonds are formed by 3 electrons. Then 1 pair of electron is there on the nitrogen. Such a situation, nitrogen will be neutral. Nitrogen will be neutral. I will rub this to show you what I am trying to say. Everything we have to understand. Na? Important things I am telling you. We are understanding the organic chemistry, students. I am rubbing this off. ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ जी. दिमाग लगाना है, सोचना है. हट, अगर हमने सोच और समझ लिया तो बहुत फायदा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ जाएगी. अभी तक पता ही नहीं लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो रही. वो रट्टेबाजी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसका कोई फायदा नहीं होगा. क्रैमिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ गए? तो बेसिक केमिस्ट्री, while learning basic organic chemistry, student, I talked of electronegativity. Now I'm talking of formal charge. ये भी पता लग जाएगा इसका क्या यूज हो रहा है, बॉन्ड बनेंगे, कैसे रिएक्शंस होंगे. यहाँ पे हम I have rubbed it off, students. वापस पेन ले रहा हूँ.
बोर्ड का यूज करना सीखा है, इसको यूज करो। अब देखो नाइट्रोजन पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो मैंने ऐसे लिखा नाइट्रोजन, ठीक है जी। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3, यही है नाइट्रोजन। तुम यू आर शोइंग लाइक दिस। यस सर। अगर कोई कहीं इफ आई डू एनी मिस्टेक यू विल लेट मी नो, ठीक है। 2s एंड 2p, अगर ये तीन बॉन्ड, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन ऐसे दिख रहा है, 3 बॉन्ड बना दिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। बोलो सही लिखा गलत लिखा? अमोनिया सही सर। क्या है ना, NH3। तो इसके ऊपर क्या हुआ, 2 3 3 1 2 3, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ 1 1 1, ठीक है। और लोन पेयर आ गया, ये न्यूट्रल है। नाइट्रोजन पे चार्ज दिख रहा है कोई यहाँ पर, प्लस माइनस मैंने लगाया कोई? नो। बोलो लगाया? कोई चार्ज लगाया मैंने, बताओ? नो, ठीक है। यहाँ नो पे सर। कोई चार्ज नहीं है नाइट्रोजन पे। कैलकुलेट कर लो, फॉर्मल चार्ज देखना तो कैलकुलेट कर लो, कोई इशू नहीं। अगर फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मल चार्ज कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास? 5, तुम कह रहे हो 3 + 2 5 है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने हैं? एक एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है जी। अब बताओ कि बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, मतलब 6/2, तो कितना आ गया? बताओ कितना आया फॉर्मल चार्ज? करनी कितना आ गया? सर 0। 0 आ गया। लो, अब देखो कि अगर ये नाइट्रोजन ऐसे बन जाए, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम। अब इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है। अब निकालो कितना आ रहा है वैल्यू जरा। जब तक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक लोन पेयर है। अब यहां पर क्या स्टोरी है? 5 इसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कोई लोन पेयर है? 0, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर है कोई? बताओ। यूज हो गया ना, हाइड्रोजन आ गया। यस कोई। अब बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 8। यस बाई सर। 2, तो कितना आया आंसर? 1। +1 आ गया। तो देखा होगा तुमने अमोनियम पे प्लस लगा रहता है, ऐसे देखा है ना यस अमोनियम? सर। बोलो यस और नो। यस। अमोनिया में देखा कभी प्लस? नो, क्योंकि नाइट्रोजन के पर फॉर्मल चार्ज नहीं है। ये नाइट चार्ज प्लस किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है। समझ गए? जब मैं लिखता हूं अमोनियम क्लोराइड, तुम लिखते हो ना NH4+ और Cl-, लिखते हो क्या नहीं? तो अमोनियम बनेगा तो नाइट्रोजन के पास कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यस और नो? ये कौन सा था? फॉर्मल चार्ज मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब समझ में आया कि जो हम आयन सर से दिखा रहे थे तुम्हें, अमोनियम क्लोराइड, समझ में आया? ये प्लस है, ये माइनस है, तुम कह रहे हो ये फॉर्मल चार्ज है, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है? -1, इसके ऊपर नाइट्रोजन पे +1। ये हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के ऊपर है। गॉट माई पॉइंट? समझ आ गया? यस सर। तो क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होगा। एमिन्स, एमिन्स पढ़े हैं ना तुमने? एमिन्स जब कंपाउंड है RnH2 वाले, मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, इस तरह से उनमें अमोनियम साल्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अमोनियम साल्ट्स बनते हैं। अब एक और बात बता दूं, अगर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने तो ये न्यूट्रल है, 4 बन गए तो ये प्लस हो गया। बोलो हो गया प्लस? यस और नो? इंटरेक्ट करो मेरे साथ, तो समझ आ रहा यस है? सर। अगर मैं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए, देखो अब नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए, अब क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन चले गया, यहां से क्या हुआ? अमोनिया से एक हाइड्रोजन चले गया, ये वाला बाहर चले गया, तो अब क्या बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको क्या बोलते हैं? अब बताओ, इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताओ नाइट्रोजन का, इसका कितना आ रहा है? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो NH2 का।
सारी केमिस्ट्री समझ आ जाएगी, बहुत मजा आएगा। हाँ, ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ये क्यों प्लस लगते हैं, माइनस कहाँ लग रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब फॉर्मल चार्ज कितना आया इसका बताओ, नाइट्रोजन का। 1 मिनट का टाइम है, फिर आई विल सॉल्व। सोचना है, दिमाग लगाना भाई, दिमाग लगाना। अरे यही फार्मूला वही यूज करना है, और तो कोई फार्मूला है ही नहीं, यही एक ही तो फार्मूला दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने हैं बताओ, 5। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, कितने वाले हैं, 2 + 2 कितने हैं, 4 हैं। यस सर। और बॉन्ड कितने बन रहे हैं, एक और एक दो, तो दो, दो बॉन्ड हैं। यस सर, नेगेटिव तो नेगेटिव दो 1। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2 बॉन्ड्स, बताओ। 2 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने हुए, 4। तो 4/2, तो ये कितनी वैल्यू आई है बताओ। कितना आंसर आया, आंसर -1 सर, है। -1। अरे करेक्ट आंसर दे दिया तुमने। तो ये एमाइड आयन है, इसके ऊपर ऐसे लिखा जाता, तुमने देखा होगा NH2-, देखा है। इसका मतलब यहाँ पे एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फार्मल चार्ज है ये किसके ऊपर, एमाइड आयन जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तुमने सुना सोडामाइड, ये यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, समझे। ये सोडियम है। तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर एमाइड आयन में -1 है, और अमोनियम आयन में क्या है, +1। समझ आई। और अगर नाइट्रोजन ओनली 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है तो वो न्यूट्रल है, उसको कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो है। क्या है, जीरो। समझ में आ गई स्टोरी। ये हमने कैलकुलेट करके दिखाया क्या, फॉर्मल चार्ज अमोनिया, फॉर्मल चार्ज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में जहां भी वेर एवर नाइट्रोजन विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेक कर लेना, जहां पर ये नाइट्रोजन 2 बॉन्ड सिर्फ बनाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। उसे क्या बोलते हैं, एमाइड आयन। सुना था इसका नाम, एमाइड। ये यूज करेंगे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में, स्टूडेंट्स इसको समझ लो। अब ऑक्सीजन पर आ रहा हूं मैं, ये तो हो गया ना, समझ आ गया। इसमें कोई डाउट है, बोलो। नो सर। फॉर्मल चार्ज का मीनिंग समझ में आना शुरू हो गया। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके यूज कर रहा हूँ, फार्मूला वही है विच वी डिड इन केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास। अब ऑक्सीजन पे आ गए। अगर इफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स, तो बताओ कि ये कोई चार्ज है या न्यूट्रल है, बोलो। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। यहाँ पे कितने यस इलेक्ट्रॉन्स सर। हैं, 2 and 2 4, 6 - 4 कितना हो गया, 2। और कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो कितना आ गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ। वेल फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये 2 बॉन्ड बनाता है, ये वाला 2 बॉन्ड बनाता है, अगर ये 2 बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट ऑक्सीजन, सर इसको 3। जीरो है, 3 3 कैसे आ गया, सर ऐसे इसका फॉर्मल चार्ज नहीं होगा ना। 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 पेयर। -2। नहीं सर, इसका आंसर, अच्छा हाँ ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। कितना आया, सॉरी 0। 0 आया है। यहाँ पे लिखा ही है मैंने, ये फॉर्मल चार्ज लिखा हुआ है, देखो 0 है इसके ऊपर। अरे देख रहे हैं, 0 इसके ऊपर 0 है। जब 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, हमेशा 0 होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस, याद रखना। लेकिन ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा, कहीं 3 बॉन्ड भी बनाएगा, देखना ऑर्गेनिक रिएक्शंस में 3 बॉन्ड दिखेंगे ऑर्गेनिक। जब वाटर का H3O बना देते हैं, वाटर में H3O बना देते हैं, तो क्या होता है, वो 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर लग जाते हैं। याद है, अगर हमने H2O लिखा था तो ये 0 था, लेकिन H3O प्लस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस लिखते हो कि नहीं लिखते, बोलो। H3O के ऊपर प्लस लिखते हो कि नहीं लिखते, यस और नो। यस सर। तो जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट, इस पे कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, देखो 1, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस हो जाता है।
इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट करके देख लो। समझ में आई स्टोरी क्या? ये कौन से एलिमेंट यूज कर रहा हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है उनके ऊपर। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि जब रिएक्शंस होंगी तो चार्ज इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या होंगी? अगर कोई न्यूट्रल है तो वो रिएक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। इफ समथिंग इज न्यूट्रल वो स्टेबल है, बट इफ समथिंग इज चार्ज्ड देन इट इज रिएक्टिव, देन इट इज रिएक्टिव। क्योंकि जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं वो फिर देखते हैं जिसके ऊपर चार्ज है तो वहां जाएंगे। क्योंकि दो टाइप के अटैकिंग रिएजेंट बताए तुम्हें, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। समझे? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे? जहां पे पॉजिटिव सेंटर होगा। और इलेक्ट्रोफाइल वाले कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल वाले इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, नेगेटिव, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? समझ में आई स्टोरी? यस और नो बताओ। तो यहाँ पर Yes, व्हाट sir. आई एम ट्राइंग टू शो, अगर वाटर है स्टूडेंट्स, तो वाटर तो मैंने ऐसे लिखा, H3O को मैंने ऐसे लिखा स्टूडेंट, और लेकिन जब मैंने OH लिखा, इसके ऊपर क्या चार्ज लिखते हैं हम बताओ? OH लिखा तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। ये क्या होता है? नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बोलो सही लिखा मैंने गलत? OH माइनस को कैसे लिखते हो? हम सही सर। नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब समझ में आया? वो फॉर्मल चार्ज है ऑक्सीजन पे कितना? -1। कैलकुलेट करना है तो यहां से कैलकुलेट कर लो। बोलो कोई डाउट है अभी तक? समझ में नो आया सर। कि यस कार्बन सर। कैन बी जीरो, कार्बन कैन बी पॉजिटिव, कार्बन कैन बी नेगेटिव। इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, दिस इज कॉल्ड कार्बन आयन। नाइट्रोजन कैन बी न्यूट्रल, नाइट्रोजन कैन बी पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एमाइड आयन। ऑक्सीजन कैन बी न्यूट्रल, ठीक है, और ऑक्सीजन कैन बी नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, देख रहे हैं जैसे OH माइनस में, OH माइनस में आया। यहाँ पे H3O बन गया था तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितने बॉन्ड है? 3, यहाँ पे 1, और 2 बॉन्ड अगर ऑक्सीजन है तो वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। समझ में आई स्टोरी? जहां भी मैं अगर जब CO लिखता हूं स्टूडेंट ऐसे, तो समझ में आई है डबल बॉन्ड है ना, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा तो फिर क्या होगा? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब एक बॉन्ड है तो फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बात समझ में आई स्टोरी? बोलो। ये कीटोन है, सर। यस कीटोन सर। को मैं ऐसे लिखता हूं, लेकिन ये कहता है कीटोन ऐसे भी दिखा सकता हूं। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है यहाँ चले गया, तो ऑक्सीजन क्या बन गया? माइनस। कार्बन के पास अब 3 रह गए। जब कार्बन 4 था तो न्यूट्रल था, यहाँ पे दिखा नहीं 4, लेकिन कार्बन 3 रह गया तो ये कार्बोकेटायन बन गया, पॉजिटिव बन गया। समझ में आई? तो अगर ये पॉजिटिव बन गया तो कौन से अटैकिंग रिएजेंट कौन से आएंगे बताओ? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। बोलो कौन से आएंगे? व्हाट टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल अटैक कार्बन? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, बताओ। सोचो, पॉजिटिव के ऊपर कौन आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? बोलो जल्दी। अरे पॉजिटिव है चार्ज, विच अटैकिंग रिएजेंट विल कम? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव वाला आएगा या पॉजिटिव आएगा यहाँ पर? सर यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव ही तो कह रहा हूं मैं, नेगेटिव वाला। तो न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो आएंगे यहाँ पर, इसीलिए कीटोन्स की जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। समझ में आई? जब कीटोन्स पढ़ेंगे ना हम तो उसमें देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे CN माइनस है, वो यहाँ पर आके यहाँ पे जुड़ जाएगा स्टूडेंट्स। कहाँ पे? यहाँ पर। तो वो साइनोहाइड्रिन बन जाएंगे। ये रिएक्शन हम करेंगे, इसलिए समझ में आई कि रिएक्शन कैसे हो रही है।
तो फॉर्मल चार्ज हमें पता लग गया किस लिए निकाल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको हमने टाइम पास करने के लिए पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। अब समझ में आई कि सारी रिएक्शन को ये डिसाइड करेगा, इसलिए हम दोबारा से मैं इसको लेके आ गया। और हैलोजेंस की स्टोरी सुन लो। हैलोजन, हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे ना, पहला चैप्टर कौन सा है, हेलो एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड्स। तो हैलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, बोलो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द हैलोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हैलोजेंस में, बताओ हाउ मेनी 7 है, 7 है ना। तो एक 7 सर। इफ इट फॉर्म्स वन बॉन्ड, यहाँ पे देख रहे हो फ्लोरीन 2 4 6 एक बॉन्ड बना है, तो ये न्यूट्रल है, फिर जीरो है चार्ज, कितना है, जीरो चार्ज। देखो कोई अगर मैंने तुम्हें लिखा CH3Br या CH3Cl, तो एक बॉन्ड है, कोई चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज कितना, जीरो। लेकिन अगर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पे देख रहे हो फ्लोरीन के पास नेगेटिव आ गया, इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर Na+ लिखता हूं मैं, सोडियम फ्लोराइड लिखता हूं, तो उसमें क्या कहता हूं, F- Na+। भाई सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है अपना किसको, फ्लोरीन को, तो ये क्या बन गया फिर, -1 चार्ज। तो ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके देख लो, माइनस आएगा। और फ्लोरीन प्लस भी हो सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो प्लस भी हो जाएगा, समझे, तो वो प्लस दिखाया हमने। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 6 तो तब हो गए ना अगर कोई फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। अगर फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है तो फिर ये प्लस नहीं बनेगा, समझ गए। Cl तो बन जाएगी, Br भी बन जाएगी, I भी बन जाएगी, लेकिन फ्लोरीन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कोई इससे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है अभी तक, यस और नो। तो Cl+ तो देखा हमने, मैं क्या कह रहा हूँ, Cl+ तुम्हें है पता है कैसे बनेगा। उसके बाद कितने होंगे, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और कैलकुलेट करना चाहो तो इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये वाले एलिमेंट्स आने वाले हैं, और इनके जो चार्जेस हैं फॉर्मल जीरो भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, और माइनस भी हो सकते हैं। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, रिएक्शन जब होगी तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट। इसी ये फिर डिपेंड करता है कि किस टाइप की रिएक्शन होने वाली है, हम इस बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। ये नाइट्रेट आयन है, इसके अंदर भी देखिए NO3 आयन है, इसका फॉर्मल चार्ज देखिए, अगर कैलकुलेट करना है तो यू कैन डू बाय दिस फार्मूला। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, 1 है, ऑक्सीजन, ये जहां भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाली दिखी तो वो -1 हो गई, क्या हो गई, -1। देख रहे हो ये सिंगल बॉन्ड है, बोलो यस और नो, इज इट सिंगल बॉन्ड, इट इज -1। डबल बॉन्ड न्यूट्रल, यहाँ शो किया था हमने ऑक्सीजन का, ये 2 बॉन्ड बनाता है, एक और एक 2, तो न्यूट्रल। और सिंगल बॉन्ड है तो ये माइनस लगा हुआ, और 3 हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन। समझ में आई स्टोरी, बोलो यस और नो, यहां तक समझ में आया। यस सर। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है यहाँ पर बताओ, 1 2 3 4। जैसे ही 4 हुए तो क्या चार्ज लगने वाला है, यहाँ पे हमने दिखाया ये वाला प्लस, समझ में आई, ये प्लस दिखा रहा हूं मैं, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस दिखा रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड माइनस दिखा रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाले को कुछ भी नहीं दिखाया मैंने, उस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, जीरो है। बोलो समझ में आई यहाँ पे कैलकुलेशन, कोई डाउट है। यस सर, नो सर, बिल्कुल नहीं। हाँ। देखो यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया, not all atoms within a neutral molecule need to be neutral. The location of any charge is useful for understanding or predicting reactivity of the formal, identifying the formal charges help us to keep track of the electrons. हमें पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं। कॉमन न्यूट्रल मॉलिक्यूल C4 जब C 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स, फ्लोरीन 1 बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर्स, ये न्यूट्रल वाले हैं।
न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स। देखो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो वो न्यूट्रल होगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर वाला न्यूट्रल होगा, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर वाला न्यूट्रल होगा। फ्लोरीन जब 1 बॉन्ड बनाएगा तो देयर विल बी 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने? 3। देख रहे हो कितने हैं? 1 2 3 लोन पेयर। ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है। समझ आई स्टोरी? बोलो समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, बहुत दिमाग लगाना पड़ा है। अब पता लगा कि हाउ मच वी हैव टू थिंक, हाउ मच वी हैव टू थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। क्या कुछ पढ़ना पड़ रहा है? अभी तक कौन पढ़ा रहा था? कोई भी नहीं। अब ये देखो कि यहाँ पर वी हैव गिवन सम मॉलिक्यूल्स। अब कह रहा है फॉर ईच ऑफ द स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई द फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी एटम दैट आर नॉट न्यूट्रल। अब इसके अंदर वो एटम जो न्यूट्रल नहीं है उनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। अब मैं कुछ तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी तुम सोचोगे क्या हुआ। अब देखो कि जैसे ऑक्सीजन है, अभी तुमने कैलकुलेशन की थी, करना चाहोगे यहां भी कर लेना। अब ऑक्सीजन बताओ कि जब ऑक्सीजन क्या सिंगल बॉन्ड होगा स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर क्या चार्ज निकाला था मैंने? जब मैंने कहा ऑक्सीजन सिंगल है तो बताओ क्या चार्ज निकला इसका? टेल मी। जैसे सिंगल वाले पे क्या चार्ज निकाला था अभी फॉर्मल? अभी मैंने कैलकुलेशन करके बताया, क्या निकाला था बताओ तुमने? इफ ऑक्सीजन इज सिंगल बॉन्ड तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज निकाला हमने? एक बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन तो कौन सा चार्ज आएगा? अभी तो पीछे मैंने किया, मतलब दोबारा से देख लो। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? बताओ क्या लिखा लगा हुआ? ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आई स्टोरी? तो यहाँ पर देखो इस कंपाउंड में मैंने एक लिखा CH3CH2O, एक बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन सिर्फ। कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है ये? 2 4 6। तो इसका फॉर्मल चार्ज अगर निकालोगे तो माइनस आएगा। ये क्या आएगा? माइनस। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करने जा रहा हूँ OR माइनस। ये नेगेटिव होएगा, इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। समझ में आ गई स्टोरी? ये यूज हो जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और ए बेस। ये बेस के रूप में यूज। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा, देखो इसमें कितने कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन? टेल मी। 3 और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। अब इस पे क्या चार्ज आएगा जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता? अभी तो किया हमने। कितना बनेगा? लो देख लो दोबारा से, विदाउट है। कहाँ गया ऑक्सीजन? ये 3 बॉन्ड है, क्या चार्ज है? यस सर। क्या चार्ज है? अरे 3 बॉन्ड पे क्या चार्ज है बताओ? फॉर्मल चार्ज क्या है? 2। अरे 2 कहाँ पे 2 लिखा मैंने? ये ऊपर 2 कहाँ है? नहीं सर आई थिंक, अच्छा कुछ नहीं ठीक है कुछ। अरे यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई अभी तुमने। 1 सर 1 +1 दिखाया, ये तो +1। ये ऑक्सीजन +1 होने वाला। और बात सुन लो, जब ऑक्सीजन प्लस होगा ना तो वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बोलो सही है गलत है बात? तो वो क्या करेगा? वाटर बाहर निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल इसमें क्या होगा कि ये H2O निकल जाएगा और CH3 CH2+ बन जाएगा। रिएक्शन जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, इसलिए बताया मैंने। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या चार्ज होगा? बोलो यहाँ पे क्या चार्ज होने वाला ऑक्सीजन के ऊपर? बोलो 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, क्या चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर? प्लस। ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है, ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, देख रहे हो? तो ये क्या आएगा? माइनस। इसके ऊपर कुछ भी नहीं, डबल बॉन्ड है तो न्यूट्रल।
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बना रहा है, 1 2 3 बना रहा है, फिर ये पॉजिटिव है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कितने बना रहा है, देखो कार्बन के बाद 3 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या कार्बन नेगेटिव हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या चार्ज है नाइट्रोजन पे बताओ, बोलो क्या चार्ज है नाइट्रोजन पे। अरे 4 बॉन्ड जब नाइट्रोजन ने बताया, क्या चार्ज होता है, जल्दी बताओ। अभी तो दिखाया तुम्हें, कौन सा है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द नाइट्रोजन, देयर आर 4 बॉन्ड्स स्टूडेंट्स, क्या चार्ज आएगा एन पे, डाउट है कोई। अभी तो कैलकुलेट किया, अमोनियम आयन पर कौन सा चार्ज था, व्हाट वाज द चार्ज ऑन अमोनियम आयन, प्लस था या माइनस था, जल्दी बताओ। तो इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आने वाला, पॉजिटिव। यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे क्या स्टोरी है, 3 और एक 4 बना रहा, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे BH3 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे 4 बना रहा है, ये पॉजिटिव हो। तो इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज के बेस पर हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स की जो एटम्स हैं उनके ऊपर व्हाट टाइप ऑफ चार्ज, फॉर्मल चार्ज दे आर हैविंग। That will be important when we will study the organic reactions and mechanism, students. So formal charges help us. तो यहाँ पर मैंने आपको क्या शो किया कि how will we calculate the formal charge, समझ में आ गई स्टोरी। नहीं सर ये कहता है मैं अभी मीटिंग से बाहर निकल गया था, कहता है पता नहीं क्यों। हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो वो कर दो, कहते प्लीज आप रिपीट कर दो। तो मैंने यहाँ पर जो चीज शो की है वो ये शो की है कि ये जो एलिमेंट्स, जो भी एटम्स हैं हमारे स्टूडेंट्स, हम उन पे फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके शो कर दिया है कि देखो जब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और व्हेन ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे एक है तो ये नेगेटिव हो गया, 2 है तो वो न्यूट्रल है। नाइट्रोजन का भी हमने यही बताया, नाइट्रोजन 4 चार्ज है तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बन 3 बना रहा है तो कार्बन आयन बन गया, नेगेटिव हो गया। नाइट्रोजन हमें नहीं 1 2 3 4 तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे BH3 न्यूट्रल है, 3 बॉन्ड, कोई डिफिकल्ट, बट जैसे ही BH3 ने 4 बॉन्ड बनाए तो बोरॉन के पास कौन सा फॉर्मल चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बोलो समझ में आई बात। यस सर। तो फॉर्मल चार्ज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर्मल चार्जेस हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, lowest energy structure from possible living structure. This helps in predicting the major product of the reaction. तो हम क्या चाहते हैं कि जो चार्ज मतलब लोएस्ट एनर्जी वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो ही डिसाइड करेगा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्जेस ऑन द एटम्स एंड मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो जहां पर फॉर्मल चार्जेस सबसे कम होंगे स्टूडेंट्स और दूर दूर होंगे, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर होगा, एंड दैट विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कहना चाहते हैं, समझ में आई स्टोरी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट, इफ वी हैव एन कि calculate the formal charge on atoms of oxygen and nitrogen mainly, जो यूज होने वाले हैं हेलोजेंस और बोरॉन भी यूज होगा और उसके कंपाउंड। तो फिर हमें पता लग जाएगा कि व्हाट मेजर प्रोडक्ट्स आर लाइकली टू बी फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये लेक्चर यहाँ खत्म हुआ स्टूडेंट्स। हमने वी आर ट्राइड टू शो यू द फॉर्मल चार्जेस आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा, हेलोजेंस होंगी, इनके ऊपर व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मल चार्ज इज देयर, so what type of intermediates are going to be formed and the major products likely to be formed in the organic। ठीक है, फिर समझ आई, एनी डाउट? यस सर, नो सर। फिर मैं मिलता हूँ इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड नाइट।